एमएसपी का कानून लाना चाहिए। हम क्या बोल रहे, हम कोई दूसरी बात थोड़ी बोल रहे, हम बोल रहे कि एमएसपी का कानून करो, इतने बात हमारी मांग है। मगर ये एमएसपी के कानून के बारे में भी सोचने को तैयार नहीं है। और जो तुम गिफ्ट दे रहे हो किसानों को, चाहे सीधी सी बात है, किसी को भी तुम गिफ्ट दो, अगर वो गिफ्ट लेने वाले को तुम्हारा गिफ्ट नहीं चाहिए तो तुम कुदरत वो गिफ्ट उसको जबरन क्यों दे रहे हैं? ये बात सीधी सी बात है, ये सियासत ने समझनी चाहिए, ये बात हुकूमत ने समझनी चाहिए। सरकारी मंडियों का बवाल मचा हुआ है कि शासन कहता है कि हम ये भाव से, दिल्ली से भाव तय होते हैं, हम मक्का ये भाव से खरीदेंगे, हम कपास ये भाव से खरीदेंगे, और वहाँ पे कोई खरीदारी नहीं हो रही। जहाँ पे एक दो जगह पे खरीदारी हो रही है वहाँ पे दलाली हो रही है। कोई दलाल लाता है, उसका माल दे देता है, उसके ऊपर भी प्रतबारी हो रही है। प्रतबारी करके किसानों को 15-15 दिन चक्कर लगाने को बोल रहे हैं। अब किसान खेतों में काम करेगा कि ये इनके यहाँ चक्कर लगाएगा? और ये बोल रहे हैं कि नहीं, तुम एक काम करो, तुम तुम्हारे उपज बढ़ाओ और तुम्हारे को खुला मार्केट देंगे। ਤੇ ਇਸ ਵਰਗਾ ਗੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਕਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਣਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੰਦੇਪਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਰਦਾ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। कई लोग दस्तखत करके आए, वोट क्यों डाल के आए, बिल क्यों पास कराया। पहले दिन से इनको बरखिलाफ बोलना चाहिए था, आउट करना चाहिए था, इस्तीफे देने चाहिए थे। सब कुछ करने के बाद जो दिया उसका कोई फायदा नहीं। कहाँ बिक रहा है? हमको मंडी चाहिए, मंडी हमको जिले की ही मंडी चाहिए। हम किसान इतने सक्षम नहीं है, हम राज्य तक नहीं जाए। हमको अपने जिले में ही अपनी मंडी चाहिए, और जो हमारे स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार लागत के 50% समर्थन मूल्य जो आप कहते हो, हम सूचीबद्ध हैं। सूचीबद्ध होने से काम नहीं चलेगा, आपको हम किसानों को प्राप्त करिए। बैरिकेड खोल कोई प्रबंध नहीं जी। किसानों ने अपने सारे से जो भी है वो अपने ऊपर ही किया है, जो ऊपर किया ये सरकार को कोई जरूरत नहीं। उन्होंने तो खड्डे खोले हैं, बैरिकेड लाए हैं, पूरा से एकदम किसानों को परेशान किया। ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਬਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਓ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੈਡਮ 3-3 डिग्रियां करी बैठे ने ते सानू कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती। ते साडे बच्चे खेती च लग गए ते साडे तो खेती जमीनां भी खोण लग गए। ते मेरे नाल मीडिया की गल होई, वो कहंदी मोदी का कोई बच्चा नहीं, मोदी दे बच्चे बहुत है। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਰਗਾ ਗੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਕਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ
ਨਾ ਕਦੇ ਖਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੰਦੇਪਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਰਦਾ ਜਾਈਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ, ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰਾ ਸਟੇਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਰ ਲਾਏ, ਕੋਈ ਡੰਪਰ ਲਾਏ, ਕੁਛ ਲਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਬੇਰਾਮੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਰਾਮੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ, ਬਹਿਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਆਲ ਵਰਗ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਾਪੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਲੜੋ, ਜੇਕਰ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਤ ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਜੋ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆ। UN ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਆ, ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆ। ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਤੁਰੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਆ, ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਆਵਾਜ਼। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾ ਢਿੱਡ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਪਾਲਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, 2-4 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਉਂਦਾ, 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਝੋਨਾ ਪਾਲਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਪ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰੀਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ 12-13 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ।
ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10-12 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਮਰੂਗਾ, मजदूर मरूगा, किसान तो अपनी जोगी थोड़ी बहुत कर लूगा, ठीक है ना। जितनी उसकी होगी ना दिहाड़ी, उसका आटा ही आएगा, कपड़ा और दूसरा काम नहीं आएगा, बहुत ही महंगा करेगा। अभी जो मक्का था 7-8 रुपये लिया, अभी उसका आटा जाके पूछो कितना, 40-45 रुपए किलो दे रहे। और अडानिया के जो है शोरूम, उसमें 150 रुपये किलो दे रहे हैं। तो जब सारा ही इनके ही अंडर में आ गया तो गरीब कहाँ जाएगा? आलू प्याज की खेती की जाती है, जब मौके पीछे भी भेजा जाता तो वो 2 रुपए 4 रुपए किलो, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 रुपए 15 रुपए किलो ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਣਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 40 ਲੱਖ टन का वा, सिर्फ 10 बंदे वो काम कर रहे जो करते हैं, तो मजदूर भी कट गए, मजदूर कहाँ जाएंगे? बेरोजगारी बढ़ेगी और गरीबी आएगी। इन्हें लोगों करके पूरी हुकूमत अपने हाथ में लेना सारे, ये नहीं इसमें इस घर सबका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं, जो भी है सबका साझा है, सबको आगे आना चाहिए, किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए, नहीं तो इनका बहुत बुरा हाल होगा। सर जिवें पॉलिटिकल पार्टियां पहला किसानां ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ आ रही हैं जी, सिर्फ वोटा वास्ते आ रही हैं, उन्होंने कोई संघर्ष नहीं का, सिर्फ वोटा हुण जोड़ लिए, जेडे है किसान गाड़ी आगे बढ़ गए हैं, अब हिमानत करांगे तो हमारी शायद वोट हम सर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ये लोग दस्तखत करके आए, वोट क्यों डाल के आए, बिल क्यों पास कराया? पहले दिन से इनको बरखिलाफ बोलना चाहिए था, आउट करना चाहिए था, इस्तीफे देने चाहिए थे। सब कुछ करने के बाद जो दिया उसका कोई फायदा नहीं। ये बेवकूफ किसानों को बना रहे हैं। केंद्र सरकार को यही कहना चाहेंगे, अरियल जो है वो छोड़ दो, ईगो अपनी छोड़ के किसानों की बात सुनो। इन लोगों ने आपको वहाँ पहुँचाया है, आप ऊपर से नहीं आए, वोट डाला है सभी ने कि अच्छा है बदलेगा, मोदी अच्छा है, अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख अकाउंट में आएंगे, सबको बेवकूफ बनाया, किसके खाते में आए? ये जो रोड में है बच्चे हैं अभी, और इतनी ठंड पड़ रही है, सब कारोबार छोड़ के इधर बैठे हैं, किसके लिए? मोदी अच्छा नहीं है। मोदी सरकार धोखेबाजी घोटालेबाजी। आज मोदी सरकार ने जो कहा है हम करेंगे किसानों की दुगनी आय, लगातार 2014 से कहती आ रही है, लेकिन किसानों की दुगनी आय तो नहीं हुई है, किसानों का दुगना खर्च बढ़ गया है। आज मोदी जी किसानों को मिला है, किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपये देते हैं, अरे तो मोदी जी एक वर्ष में किसानों को इतना खर्च, इतनी लागत के हिसाब से सट के टॉयलेट डोरी पाइप कितने 6,000 रुपये के लग जाते हैं। मोदी जी आप किसानों को जो कहते हो वो करिए, नहीं तो आपकी समय आ गया, किसान जान चुका है कि आपकी बढ़ती हुई दाढ़ी का राज क्या है। मुझे लगता है आपका झोला उठा देने का समय, चलने का समय आ गया है, और अब ये समुद्र बन गया है। ये किसानों का धरना आंदोलन समुद्र बन जाए, क्योंकि सरदार से समुद्र बन जाता है। और समुद्र मैं MP जिला छतरपुर से रुकेश पटेल मेरा नाम है, मुझे चौथा देने आज आए हुए आप लगातार। मैं खेत किसान हूँ, 8 एकड़ मेरी खेती किसानी करती हूँ। मुझे पता लगा, जैसा ही मैंने कहा मैं भी अपना कुछ आप सबके बीच में समय दूं, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मोदी जी अब जो समंदर की लहरें हैं, जो बीच का किनारा होता है, इतना बड़ा समंदर बन गया है अभी, क्या है तो बीच का किनारे में बीच में जो कचरा होता है वो लहरों में किनारे पे आ जाएगा। तो आप समझ जाइए अब आपके लिए सही नहीं होगा, और आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से किसानों के साथ, किसानों के बीच आज आपको जो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट होती है वो आप अडानी अंबानी की रिपोर्ट बना रहे हो। कल के दिन इतनी तेज महंगाई बढ़ जाएगी, आज आप किसानों को जो अधिकार होता है, किसान देश की हड्डी है, किसान देश का भगवान है, उसकी कमर तोड़ रहे हो। बिल्कुल नहीं चलेगा आपका, बिल्कुल किसानों के साथ किसान जब तक लड़ेगा किसान
तब तक आप जो तीनों बिल आए हैं आपने लाए हैं उनको वापस नहीं कर देंगे, क्योंकि लक्ष्य भी सही है निशाना, फिर भी वही है निशाना। जो आपने तीनों काले कानून लाए हैं, इस काले कानून को हमारा लक्ष्य वापसी करा लेना, बस इसी के साथ में। लेकिन सर जो मोदी सरकार है वो तो बोल रही है कि हम बिल है उनका शोध कर देंगे जरूरत पड़ी तो, लेकिन हम बिल वापस नहीं लेंगे। देखिए बिल वापस क्यों नहीं लोगे, बिल्कुल लेना पड़ेगा। बोलने क्या है, आपने उन बिलों में क्या कहा है कि जो हमारे हम किसानों की अनाजों के फसल के दाम होते थे, जो बीच के बीच बिचौलिए खाते थे, वो अब नहीं खाएंगे। और हम एक किसान एक प्रधान एक निशान एक संविधान किसानों को भी मिलना चाहिए, एक मूल्य एक बाजार मंडी के भाव के दाम मिलने और लोड क्यों भैया? आपने जो हमारी बाजार मंडियों होती थी जिले की वो खत्म कर दी है, तो हम 90% किसान कहाँ जाते हैं, अपने जिले में ही अपनी फसल बेचते हैं। 90% किसान, हमारा इतना नहीं कि हम इस राज्य सोच रहा था तक ले जाए, हमारे पास इतने संसाधन नहीं है। पहली बात तो अब इसके बाद आपने जो जिले का हमको बाजार दिया है, आप एक जिले का बाजार दीजिए हमको, और जो बोला गया है आपने डीएनए टेस्ट किया है आपने, जो बोला गया है कि आपको जो आज 1500 रुपए किलो गेहूं का रेट है, तो कल के दिन वो 25 का हो जाएगा। ये कहाँ में बिक रहा है, आज भी वही रेट बिक रहा है, 25 का होना चाहिए। आज जो मक्का, दाल, ज्वार और टमाटर, आलू, प्याज 8-10 रुपए किलो किसान देते मर रहा है, 5-5 रुपए किलो टमाटर देते मर रहा है। आज पहले इस बिल से क्या 225 का बिकेगा, तो इससे कभी हम किसानों का भला होगा और कभी देश का भला होगा। जिदा कि ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। बढ़िया जी ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? सोनीपत से आए हैं। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? हमने जी अपनी मांग को पूरी करना है जी। ये काला कानून है, ये सरकार वापस ले जी। ये काला कानून में माने का काम किया जी। जमींदार को किसी भी बिरादरी में, हर एक बिरादरी में जमींदार है, तो हम तो यही मांग करते हैं सरकार से। हम अपना शांतिपूर्ण ढंगरा अपना दाना दे रहे हैं, हमसे कोई बढ़ने की कोशिश करेगा तो हम आर पार की करने की कोशिश करेंगे। हम लगातार जब हमें 26 जनवरी मनाने पड़ जाए हम पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। सरकार मोदी जी से यही अनुरोध है, हमारा काला कानून वापस ले और हमें अपने आने बसी बढ़िया क्रिया। जो देश का आरएसएस संगठन है, चार खेती ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ बिल्कुल ही गलत है। दिल्ली पब्लिक आई बैठी है, सब स्टेटों के लोग आए बैठे हैं, वो अच्छे नहीं है तो इसलिए आए बैठे हैं। एक आदमी को नहीं पता चलेगा, दो को नहीं चलेगा, चार को नहीं चलेगा, सब लोग बेवकूफ तो है नहीं है जो इधर आके बैठे हैं। ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ मेरे को 2 किले 3 कनाल जमीन है, ठीक है। मैं जो लागे शहर पर उतर ही जाऊंगा, ठीक है। इतनी ज्यादा फसल तो है नहीं, मैं दूसरे स्टेट में ले जाऊँ किधर जाऊँ। जो छोटा जमींदार है उसने आड़ती है तो पैसे लाए हुए, ठीक है, कहीं साहूकार को लाए हुए हैं, वो दूसरी स्टेट में ले जाने दूंगा। अगर जो पैसा नहीं लूंगा तो खेती कहाँ से पालूंगा, पैसा तो कहीं साहूकार को लेने पड़ेगा। देखो ये तो हुण मोदी दे बस की करता है, बाकी सब लोग इधर रुके हैं। सोच तो यही है कि अच्छा ही करेगा, करता है तो बढ़िया है, नहीं तो सब लोग बैठे हैं बैठे रहे। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਲ ਤੋਂ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉੱਧਰ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ 15 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਹਜੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ। ਜਿਹੜੇ 15 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੇਖਣ ਡਏ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਹੈ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈ, NGO ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਔਰ एक काला कानून जरूर वापस होएगा, एक दिन जरूर इन्हों की हार होएगी, अपनी चढ़ती कला होएगी। जी, मेरा नाम संदीप है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, औरंगाबाद ज़िले से आया हूँ। मैं 1300 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ तक आया हूँ। जी, बात ये है कि हम क्यों आए, तो हम किसान के लड़के हैं, किसान के बच्चे हैं। हमारे माता पिताजी पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है और वो इतना बड़ा संघर्ष नहीं कर रहे, और वो चाहे इस मंच पे संघर्ष क्यों ना करे वो, मगर उनकी ज़िंदगी में बहुत सारा संघर्ष कर रहे हैं। हर दिन मट्टी से लड़ रहे हैं, हर दिन कुदरत से लड़ रहे हैं, हर दिन ये शासन की व्यवस्था से लड़ रहे हैं, हर दिन प्रशासन से लड़ रहे हैं। उनकी भी अलग ज़िंदगी भर की जंग चालू है। तो हमने सोचा है कि भाई हमारे माताजी पिताजी की ओर से हम हमारी जंग यहाँ पे उनकी ओर से हम दिल्ली में लड़ने आए। देखो कि महाराष्ट्र में इतना बड़ा सरकारी मंडियों का बवाल मचा हुआ है कि शासन कहता है कि हम ये भाव से, दिल्ली से भाव तय होते हैं, हम मक्का ये भाव से खरीदेंगे, हम कपास ये भाव से खरीदेंगे, और वहाँ पे कोई ख़रीदारी नहीं हो रही। जहाँ पे एक दो जगह पे खरीदारी हो रही है वहाँ पे दलाली हो रही है। कोई दलाल लाता है, उसका माल दे देता है, उसके ऊपर भी प्रतवारी हो रही है। प्रतवारी करके किसानों को 15-15 दिन चक्कर लगाने को बोल रहे हैं। अब किसान खेतों में काम करेगा कि ये इनके यहाँ चक्कर लगाएगा, और ये बोल रहे हैं कि नहीं, तुम एक काम करो, तुम तुम्हारी उपज बढ़ाओ और तुम्हारे को खुला मार्केट देंगे। मेरे को बोलो, जो किसान 20-20 कुंटल 25-25 कुंटल उसके पास गेहूँ पैदा होता है, वो हर एक घर के पास जाके किलो गेहूँ बेच सकता है क्या? उतने आदमी उसके पास है क्या? उतने तो आदमी इसके पास नहीं है। और शासन बोल रहा है कि नहीं, हम तुम्हारे को फ्री मोनोपोली दे रहे हैं, फ्री मोनोपोली। अरे भाई, तुम फ्री मोनोपोली दे रहे हो ये बात सही है, मगर तुम ये जो मंडियाँ ख़त्म करेंगे, सरकारी मंडियाँ जब ख़त्म करेंगे, सरकारी मंडियों का सिस्टम जब ख़त्म होगा, कुछ दिनों के लिए जो अबानी अंबानी वाली जो लगाने वाले हैं आप, तो ये ज़्यादा भाव देंगे, मगर ये मंडियों का सिस्टम कोलैप्स होने के बाद ये उनकी मनमानी हो जाएंगी, उनकी फ्री मोनोपोली हो जाएंगी। चाहे तो वो 100 रुपये क्विंटल से भी गेहूँ खरीदी कर सकते, चाहे तो वो 200 रुपये क्विंटल से भी खरीदी कर सकते। इसके ऊपर आप क्यों नहीं बोलते? MSP का कानून लाना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं? हम कोई दूसरी बात थोड़ी बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि MSP का कानून करो, इतनी बात हमारी मांग है। मगर ये MSP के कानून के बारे में भी सोचने को तैयार नहीं है। और जो तुम गिफ्ट दे रहे हो किसानों को, चाहे सीधी सी बात है, किसी को भी तुम गिफ्ट दो, अगर वो गिफ्ट लेने वाले को तुम्हारा गिफ्ट नहीं चाहिए, तो तुम कुदरत वो गिफ्ट उसको जबरन क्यों दे रहे हैं? ये बात सीधी सी बात है। ये सियासत ने समझनी चाहिए, ये बात हुकूमत ने समझनी चाहिए। अगर नहीं समझेगी तो ये किसान मानने वाली नहीं है, ये सियासत को झुका के ही रहेंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं।